Hello everyone, welcome you all in today's session. In today's session, we are going to start with artificial methods of contraception or artificial contraceptive methods. In the last lecture, we were done with the natural methods of contraception and today we will start with artificial methods. Artificial methods of contraception means these are the methods which are used artificially to prevent the fertilization. So, if we talk about artificial methods of contraception, then these methods include barrier methods, intrauterine devices, physiological or it's also called oral devices, and injections. So see, let's start with first method, that is barrier method. See, what do you mean by barrier? Barrier means anything which is used to prevent something. So barrier method क्या है? Barrier methods are those methods which prevent the reaching or the mating of the sperm and the egg. तो जैसे अगर इस जो barrier methods हैं, these are used in both in male and female. तो barrier method में जो टू टाइप के barrier method होते हैं, chemical methods, chemical barrier and mechanical barrier. See, what are chemical barriers? As the name is indicating that chemicals means chemical barriers are the methods in which certain chemicals, these chemicals in the form of tablets, jellies, paste, या कोई ऐसे chemicals जो हैं, these chemicals are used by the female in the vaginal part or in the vagina during the sexual intercourse. So see what will happen. Suppose this is the female reproductive tract. So in chemical barriers, certain paste, jellies, creams, tablets, some creams or these chemicals are used by the female in the female genital tract or in the vagina. So these chemicals contain, these paste creams contain some chemicals. These chemicals act as spermicides. Spermicides. Spermicides means the chemicals which kill the sperms. So these chemicals, these substances contain spermicides, and these cream, jellies, paste, solution are used in the vagina of the female during the sexual intercourse. So when the sexual intercourse will take place, then these spermicides will kill all the sperms. So sperms will be killed in the vagina or the cervix, and the sperm will not be able to fuse with the egg. Fertilization will not take place, and the birth of the child will be prevented. So these are the chemical methods in which some chemicals are used to kill the sperms before the fertilization. And these chemicals are available in the form of jellies, cream and paste. After that, chemical method में ही एक है हमारा एक हमारे barrier methods में ही एक है हमारा mechanical barrier. See, mechanical barrier में क्या आते हैं? Mechanical barrier में आते हैं जो condoms. See, mechanical barrier is also used by both male and female. तो barrier method में आते हैं condom, cervical caps, vaginal caps और diaphragm. These are the devices. Yeah, these are the like जैसे condoms. These condoms are very commonly जो बिल्कुल common जो ये mechanical जो barrier में जो condom, cervical cap, vaginal cap, these are the very commonly used devices which are used to prevent the mating या arrival of the sperm to the egg. So अगर sperm will not be able to arrive to the egg, then fusion will not take place. First, condoms. Condoms are actually the rubber made up of rubber, and these are used by the male.
on the penis before the sexual intercourse. So if the male is using the condom on the penis, then during the sexual intercourse, when the male will produce and secrete the semen will be stored in this condom. So it will not be ejaculated or will not be released in the body of the female. इसी तरह से जो सर्वाइकल कैप्स हैं, these cervical caps are used in the body of the female, or it is used by the female to cover the cervix. Again, the cervical caps are used to prevent the release या prevent the entry of these sperms in the female genital tract. इसी तरह से जो vaginal caps हैं या diaphragm, these are the devices which are used by the female to prevent the fertilization. जो condoms हैं, these are actually made up of rubber and they are used once at a time or they must be discarded after the use. तो जो condom है, देखिए जो condom जो हमारे इंडिया में और जो हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट also suggest the people to use the condom. और इसी तरह से एक जो निरोध नाम से ब्रांड आता है, निरोध condom, which are usually distributed by the government also as a contraceptive method. इसी तरह से intrauterine devices से intrauterine devices क्या है? As the name is suggesting that intrauterine मतलब यूटिरस के अंदर यूज होने वाली कोई डिवाइस. तो इंट्रायूटराइन डिवाइसेस में क्या होता है? Suppose this is the diagram for female reproductive tract. तो इंट्रायूटराइन डिवाइसेस जो है, इसमें क्या किया जाता है कि जो फीमेल का यूटिरस पार्ट है, इसमें कुछ डिवाइस या कुछ सब्सटेंस रख दिया जाता है, जिससे क्या होगा, लाइक आप पहले देखिए इंट्रायूटराइन डिवाइसेस में, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी आर प्लेसिंग ऑन दैट बेस, जो इंट्रायूटराइन डिवाइसेस आईयूडीज, दीज आर ऑफ नॉन मेडिकेटेड टाइप. देखिए नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज क्या है? दीज आर एक्चुअली दीज वर यूज्ड इन द ऑल टाइम एंड दीज वर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो ये जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज हैं, जो ये प्लास्टिक की बनी हुई इस तरह से एस शेप की डिवाइसेस हैं. तो व्हेन दीज डिवाइसेस वर यूज्ड इन द यूटिरस और दीज आर प्लेस्ड इन द यूटिरस, तो ये डिवाइसेस क्या करते हैं? दे विल किल द स्पर्म्स व्हेन द सेक्सुअल इंटरकोर्स विल टेक प्लेस. जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज हैं, इसमें आप एग्जांपल लेते हैं लाइव्स लूप का. जो लाइव्स लूप क्या है? तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स या दीज आर द प्लास्टिक having plastic जो substance and is having S-shaped structure. These are placed in the uterus of the female. तो इसी तरह से जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज जो है, these आयोडीज या these substances are made up of copper. ये कॉपर के बने हैं and these are placed in the uterus of the female. तो जो ये आयोडीज जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं, these are of different type like copper T, copper 7, ये इसके टाइप है, copper T, copper 7 या मल्टी लॉर्ड 375. तो ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के टाइप है. जो कॉपर टी है, जो ये सिर्फ शेप के बेस पे जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है, लाइक जो कॉपर टी जो है दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर और ये टी शेप की होती है, तो इसे कॉपर टी बोल देते हैं. तो ये कॉपर टी डॉक्टर लोग क्या करते हैं? दे प्लेस दिस कॉपर टी इन द यूटिरस ऑफ द फीमेल. देखिए जो आयोडीज है, आयोडीज उन केसेस या उन फीमेल के अंदर यूज की जाती हैं विच हु
want to have the gap between the first and the second pregnancy, कि अगर किसी का एक बेबी है तो और वो काफी 5 या 6 साल तक अगर वो और बेबी नहीं चाहते हैं, या they want to have the gap between the 2 successive pregnancy, in that case these IUDs are kept. तो what will happen, these copper T जो IUD है that is made up of copper and is having T-shaped structure, और कॉपर जो कॉपर 7 है उसमें क्या होगा, द शेप ऑफ द कॉपर आईओडी विल बी ऑफ 7 शेप, लाइक 7 जैसा होगा, बट काम क्या होगा, कॉपर जो रिलीजिंग आईओडीज का, एक्चुअली दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर मैटर, तो दीज आईओडीज विल बी रिलीजिंग द कॉपर आयन इन द यूटिरस, तो यूटिरस के अंदर ये कॉपर आयन रिलीज करते रहेंगे, तो these copper ions will be responsible for the killing या for the death of the sperms. ये sperms को kill करेंगे, sperms की मोटिलिटी को रिड्यूस कर देंगे, sperm मूव नहीं कर पाएगा और sperm kill हो जाएगा and it will not be able to reach the egg. egg तक नहीं पहुंच पाएगा, hence तो ये क्या कर रहे हैं, hence these copper releasing intrauterine devices are causing the death or reducing the motility of the sperm and are making the sperm unable to reach to the egg and are preventing the fertilization. After that है जो hormone releasing IUDs. Hormone releasing IUDs क्या है? These are also a type of IUDs which are placed in the uterus of the female, but these produce different types of hormones. ये hormone produce करते हैं. Hormone में जो commonly use hormone releasing IUDs है, that is progesterone. Progesterone. तो ये क्या करते हैं? देखिए जो copper releasing IUDs हैं, copper releasing IUDs इस फैक्ट पे काम करती है कि जो कॉपर आयंस हैं, copper ions are causing the death of the sperms or they are reducing the motility of the sperms or killing the sperms and are preventing the sperms to meet with egg. But जो hormone releasing IUDs हैं, like आपको एग्जांपल बताया मैंने प्रोजेस्टेरोन का, या इसमें LNG-20 भी इसका एग्जांपल है, तो these intrauterine devices are placed in the uterus and these devices are producing the hormone progesterone. देखिए जो प्रोजेस्टेरोन hormone releasing IUDs है, it will be producing the progesterone hormone which will inhibit, how it will work, it will make the endometrium unsuitable for the implantation. कि try to understand कि hormone releasing IUDs work on the fact that the hormones produced by these intrauterine devices will inhibit the implantation of the zygote with the endometrium. So these hormones are making the endometrium unfit or unsuitable for the implantation. तो इस प्रिंसिपल पे या इस फैक्ट पे काम कर रहा है. इसी तरह से जो LNG-20, देखिए इसका मतलब क्या है 20 का, LNG क्या है, LNG एक टाइप का फीमेल हार्मोन है. तो जो ये फीमेल हो, अब कोई ये आईयूडी है, सपोज कीजिए हम यूज कर रहे हैं LNG-20, तो ये जो 20 कोड, ये कुछ कोड है, लाइक इसमें T था, इसमें 7, तो T और 7 तो क्या है कि कॉपर की शेप के बेस पे है. लेकिन LNG-20 कोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि LN जो ये आईयूडीज यूज की है, ये LNG हार्मोन रिलीज कर रही है और ये एक दिन में लगभग 20 माइक्रोग्राम अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज कर रही है. कि दिस आईयूडीज LNG-20 IUDs is releasing a very important female hormone, that is LNG. LNG hormone की जो that hormone is being produced 20 microgram per day.
तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट इसको कोड दिया गया है। तो दिस इज अबाउट इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो देखिए नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस जो हैं, नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस जो मेनली प्लास्टिक की बनी होती हैं, जिसमें एग्जांपल हमने लिप्स लूप का पढ़ा। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में जो आयोडीज है वो कॉपर की बनी है। इफ दिस कॉपर releasing iodine is of having T shape, it is called copper T. It is having 7 shape, then it is called copper 7. But the function of these copper releasing iodides is to produce and secrete the copper ions, which will cause the motility, which will reduce the motility or will kill the sperms. तो जो copper releasing iodides है ये हमेशा sperms को की मोटिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, स्पर्म्स को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। बट जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या है? दीज आर द डिवाइसेस विच आर प्लेस्ड इन द यूटेरस एंड दीज डिवाइसेस विल बी प्रोड्यूसिंग द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। आयोडी क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। LNG-20 क्या करेगा? LNG-20 हार्मोन रिलीज करेगा। एंड हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज आर इनहिबिटिंग the pregnancy or preventing the pregnancy by making the endometrium unsuitable for the implantation. तो जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे, और जो कॉपर रिलीजिंग है ये स्पर्म्स की जो मोटिलिटी को रिड्यूस कर देंगे। तो बोथ 3 of these interferon devices are being used as a contraceptive method. After that आता है हमारा थर्ड वाला, जिसमें हमको पढ़ना है फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस। थर्ड है हमारा फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस और फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। देखिए क्या होगा, फिजियोलॉजिकल का मतलब किससे लेते हैं? फिजियोलॉजी मतलब जितनी भी हमारी बॉडी में वाइटल एक्टिविटीज हो रही है, दैट इज फिजियोलॉजी। तो देखिए जो फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस में हमारी आती हैं ओरल डिवाइसेस या ओरल मेडिसिन, जिसको आप पिल्स भी बोलते हैं। आप फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस कह लीजिए या फिर ओरल डिवाइसेस, इसको ओरल डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं, ओरल डिवाइसेस। तो ओरल डिवाइसेस क्या है? दीज आर द contraceptive method के these are the devices which are used as the medicines, tablets or the pills। जो दवाइयां के जो आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि कुछ लोग प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कुछ दवाइयां लेते हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं, बिकॉज दीज मेडिसिन आर बीइंग टेकन फ्रॉम द माउथ, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ओरल डिवाइसेस। तो ओरल डिवाइसेस में जो पिल्स ली जा रही हैं, दीज ये एक्चुअली जैसे आपने देखा कि कॉपर रिलीजिंग जो आयोडीज है वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, हार्मोन रिलीजिंग किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है। तो जो ओरल डिवाइसेस हैं ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं कि जो टैबलेट्स, जो मेडिसिन जो वुमेन ले रही है, दैट मेडिसिन आर कॉजिंग द प्रिवेंशन या दीज डिवाइसेस आर प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, कि ये मेडिसिन ओव्यूलेशन नहीं होने देंगी। ओव्यूलेशन नहीं होने देंगी तो एग रिलीज नहीं होगा, एंड इफ एग विल नॉट बी रिलीज देन इट विल कॉज द नो फर्टिलाइजेशन। तो देखिए फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस में क्या, जो ये जो मेडिसिन हैं, दी मेडिसिन आर ऑफ 3 टाइप्स। इसमें एक आते हैं हमारे मिनी पिल्स, एक आते हैं कंबाइंड पिल्स, और एक आते हैं हमारे इमरजेंसी पिल्स। मोस्ट ऑफ दी बुक्स के अंदर ये 3 टाइप की पिल्स दे रखी हैं, मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स एंड इमरजेंसी पिल्स। देखिए आपने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक किया था तो उसमें आपने ये देखा था कि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है, एट दैट टाइम FSH का सिक्रीशन कम हो जाता है। कि अगर बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा है, मतलब प्रेगनेंसी हो रही है, उस टाइम पे क्या होगा कि FSH का सिक्रीशन कम हो जाता है, ओवुल फॉलिकल्स नहीं बनते,
LH नहीं बनता, ओव्यूलेशन नहीं होता। तो क्या होता है, जो मेडिसिन ली जा रही हैं या जो पिल्स ली जा रही हैं, दीज पिल्स आर प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। और इन मेडिसिन में, इन पिल्स में जो होता है वो हार्मोन होता है, यानी कि दीज पिल्स आर हैविंग द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, दो हार्मोन होते हैं। तो कुछ मेडिसिन में सिंगल हार्मोन है, कुछ में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों है। तो लाइक पहला है हमारा मिनी पिल्स। मिनी पिल्स जो दीज आर द मेडिसिन या दीज आर द टैबलेट्स विच कंटेन ओनली सिंगल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है। आफ्टर दैट इसमें जो मिनी पिल्स में एग्जांपल आता है, जो आपने बहुत कॉमनली ब्रांड सुना होगा सहेली के नाम से, जो सहेली के नाम से आता है। तो मिनी पिल्स जो है, दीज आर द मेडिसिन विच कंटेन सिंगल हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें जो सहेली है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मोस्टली जो एनसीईआरटी में दे रखा होता है। उसके बाद कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड, दीज आर द पिल्स विच आर हैविंग प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन बोथ, जिसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। जिसमें एग्जाम्पल आते हैं आपके माला एन, माला डी, ये मेडिसिन है। आफ्टर दैट इमरजेंसी पिल्स। देखिए इमरजेंसी पिल्स क्या है, दीज आर द पिल्स विच आर टेकन विद इन दिस 72 आवर्स आफ्टर कॉपुलेशन या आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स से 72 घंटे 72 आवर्स के जो अंदर ये पिल्स ली जाती हैं, विच आर यूज एज अ इमरजेंसी पिल्स। तो ये क्या करेंगे, इमरजेंसी पिल्स क्या करेंगे, दे विल प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेंगे, प्लांटेशन को प्रिवेंट करेंगे। तो जो ये है, दीज आर यूजुअली टेकन विद इन दी 72 आवर्स आफ्टर द कॉन्सेप्शन या आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो दीज आर अबाउट द ऑरल डिवाइसेस। देखिए, आई वॉन्ट टू मेक यू क्लियर वन थिंग कि जो ऑरल डिवाइसेस है, जो मेडिसिन यूज हो रही हैं, इन मेडिसिन में मैंने आपको बोला कि इन मेडिसिन में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन यूज किए जा रहे हैं। देखिए, ये हार्मोन्स इस कंसंट्रेशन में या उस कंसंट्रेशन में यूज किए जाते हैं जिस कंसंट्रेशन में ये हमारी बॉडी में नॉर्मली पाए जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल चलता रहे। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलाने के लिए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जितना जितना लेवल हमारी बॉडी में होना चाहिए, उसी कंसंट्रेशन में इन पिल्स के अंदर वो हार्मोन पाए जाते हैं। लाइक अगर आपने देखा हो कभी मार्केट में या कभी इस मेडिसिन को माला डी और माला एन, जो ये पूरी टैबलेट्स का एक मतलब कि पूरा एक फोल्डर होता है, और उस फोल्डर के ऊपर ये मेडिसिन स्टैक की होती हैं कि उसमें पर्टिकुलर होता है कि इस टाइम पे ये मेडिसिन लेनी है, और इसमें इतने टाइम के बाद ये मेडिसिन लेनी है, इतने टाइम के बाद ये मेडिसिन लेनी है। उस अलग अलग टैबलेट में अलग अलग दोनों हार्मोन्स का अलग अलग कंसंट्रेशन होता है, कि ऐसा नहीं कि आप इस डोज को पहले ले लेंगे या इस डोज को जिस डोज को जब लेना है वो तभी लेंगे, कि उन मेडिसिन के अंदर इन हार्मोन्स की कंसंट्रेशन इस तरह से फिक्स की जाती है कि जो हमारी बॉडी में एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के दौरान जिस कंसंट्रेशन में वो हार्मोन होते हैं। तो मेन आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑरल डिवाइस या जो पिल्स यूज की जाती हैं, दीज पिल्स जनरली प्रिवेंट द या इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, और जो इमरजेंसी पिल्स हैं, दीज जनरली इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ implantation and thus prevent the pregnancy. So this is all about the artificial methods of contraception. देखिए, जो हमने पहले नेचुरल मेथड किए हैं, आफ्टर दैट आर्टिफिशियल मेथड्स किए हैं। These methods are also called temporary methods. टेम्परेरी मेथड है कि अगर टेम्परेरी मीन्स कि अगर एक बार आपने इनमें से कोई मेथड यूज कर लिया, दैट इज नॉट मेकिंग यू फर्टाइल, इनफर्टाइल, आपको इनफर्टाइल नहीं कर रहा है कि एक टाइम पे आप प्रेगनेंसी रोकना चाह रहे हैं, अगले टाइम पे आप चाहें तो प्रेगनेंसी दोबारा कंसीव कर सकते हैं।
So these are the temporary methods. So we are done with natural and artificial methods. So these were the temporary methods. So in the next lecture, we will continue with permanent methods of contraception. That what are the methods which are used to prevent the permanent pregnancy. So in the next lecture, we will continue with permanent methods. Thank you.